Okay, so how's everyone today? How is the practice going? Very nice, Alifia. The practice is going very nice, and uh, I'm able to see the difference. There is inner peace actually. Mm-hmm. Yeah, that's what we are trying to achieve here. Very nice, very nice. Thank you for sharing. So yesterday's practice was very easy, right? How did you feel after like you did the all, in mental picture? The How money did you practice. money practice? Yes. Yes, yes, very good. That was very good. Yeah, so now everybody keep that whatever bill whatever note you took, Indian rupee note, keep them in a prominent place so you can always see that. Maybe if it's in your purse, wallet, whatever, wherever you find it prominently placed. So you can also place it like at different spots, like maybe on your fridge you can put it, and in your bedroom or on your mirror also you can put it, which is also very effective. So yeah, you can put anywhere, wherever you like. Maybe in your cupboard. When you open the cupboard, you In can see that. season one, I didn't. Mm-hmm. Were you Am I asking audible? something? Yes, yes. Now you're audible. A little bit like your voice is low. Yes, 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 yes. I told you that. Okay, fine. No. No, in season one, actually, I didn't do these practices properly. Actually, I only did the gratitude practices every day, and the other practices, all other practices, almost I skipped. But now I'm doing it, and I'm really feeling the difference. Mm-hmm. Yes. At least after a month also, if you're starting to do, and if you're starting to do it with conviction, definitely there will be so much difference. And I'm very, very glad that at least you took a stand for yourself, for your life, and you are doing it. So uh, I understand, like initially you might not have that conviction, you might not have that faith also built on this practice. So now you're at least building some faith with this practice. So that is why now it pushes you, it inspires you to do some, do the all practices nicely. So that is also a difference from like past month to now. So of course everything will be like, everything will set in place once you start doing it. एंड इसमें क्या होता है कि आपकी मतलब खुदा गॉड जो भी आप बोलते हो वो भी आपको बहुत मदद करेंगे। जब आप ठान लेते हो कि हाँ मुझे ये करना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता है लिखना है, जो भी है आपके खुद के जो ब्लॉक्स है, माइंड ब्लॉक्स, वो उनको निकालने में वो भी आपकी मदद करेंगे। तो ये भी हमेशा याद रखना। ओके, चलो तो फिर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। किसी और की शेयरिंग है कुछ? Anybody else wants to share? Peak raise in Okay. the running position. Think and feel that you are running an Olympic race. Let's do a and you peak are state winning. programming before Standing we in the start. same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Yes, come on, faster, 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 faster. Yes, fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, keep running, keep running. Fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on. Go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very nice, very nice, very nice. And you say to yourself, Yes, I'm I am the the winner. winner. Yes, I'm the we winner. all are the winners. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right
leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster, come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on, faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Yes, Thank you. And yes, now, we all are say the to winners. yourself, yes, I am the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. I can. Repeat, I will. I will. I must. I must. I can. I will. I must. Thank you. Okay, so I will send you all the another meeting link later on, which is a recurring, so we don't have to change it every day. This one I just started. Okay, so we can go from there. Okay, so who would like to read today? Let me open the book. So today's magic practice is about your works like magic. It's very beautiful chapter. Okay, who would like to read? Come on, from all of you, at least one person can come. Fari, would you like to read? Amena? Yeah, I'll read. Yeah, I will read. Okay, very nice. Thank you so much for coming up. Okay, I cannot see the book here for some reason. Okay, hold on. Okay, now I see it. Okay, so what do you all see in this picture? What do you all see in this picture? Come on, describe it. There is a room and a study table kind of. Mhm. Magical sparkles are coming, like there is a lamp from that. Everywhere is darkness, but from the lamp light is coming, and magical sparkles are coming out of it. There is one book and pen Mhm. on the table. Yeah, so it's a kind of office-like setting. You see the printer Yes. here, yeah, and like some kind of instrument is there, and there are some Yes. files over there. So it's an office setting, and the magical sparkles are coming on the book because you're writing the gratitude practice for your work. Okay, so let's read. Start. If you take any activity, any art, you discipline, any skill, take it and push it as far as you will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges, then you force it into the realm of magic. Realm Tom of Ra- magic. yeah, Tom Robbins. 1936. Yeah, How so can यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी ले लो, भले ही वो सिंपल सी एक्टिविटी क्यों ना हो, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो वो सक्सेसफुल हुए कैसे, क्योंकि वो काम तो सिंपल करते थे पर वो काम को उन्होंने बहुत ही
उसमें बहुत जान डाल के वो काम किया, बहुत ही प्यार उसमें डाल के उन्होंने काम किया और धीरे-धीरे करके वो एक छोटे से काम से कहाँ पहुँच गए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मुझे पता नहीं कल ही किसी का वीडियो आया था तो मैं देख रही थी कि वो जो पर्सन था उसको बस ऐसे ही कुछ-कुछ ये हैंडीक्राफ्ट की जैसी चीज़ें बहुत पसंद थी। तो उसने थोड़ी-थोड़ी कहीं-कहीं से उसने कुछ स्टार्ट किया और उसको अभी ये लेवल पे लेके आया कि वो बहुत सक्सेसफुल है। अपने घर में भी सब चीज़ों को लेके उसने एक चीज़ उसने अपने घर में उसने कुछ ना कुछ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें उसके घर में उसने बनाई। और वो वीडियो था उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे। आई वाज़ जस्ट वाचिंग इट यस्टरडे ऑन यूट्यूब एंड आई वाज़ सीइंग कि कितना उसमें उसने जान डाल दी थी वो वाले काम में। इतनी जान डाली थी कि इनिशियली तो जब उसने स्टार्ट किया तब तो वो ज़ीरो था, कुछ नहीं था उस टाइम पे। उसने बस उसको जो काम पसंद था, उसकी जो हॉबी थी, वो करता गया। इसको किसी ने सजेशन दिया कि क्यों नहीं आप कोई रेस्टोरेंट में जाके क्यों नहीं पूछते हो कि आपका जो ये बोर्ड है, मैं उसको सुधार सकता हूँ करके फ्री में। तो उसने फ्री में ही वो काम स्टार्ट किया। और फिर एक कोई आर्ट गैलरी थी, उसमें पूरे चॉक से वो पूरा यानी जो भी रूम था वो आर्ट गैलरी में या कुछ ऐसा था, उसने दिखाया था कल। तो उसमें पूरी चॉक से उसने वो कुछ बॉर्डर्स वगैरह की और पूरे रूम का नक्शा बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसने उसमें अपना खुद का बहुत प्यार डाला था। उस टाइम पे उसका वो नहीं था कि वो कितना आगे बढ़ेगा, बस उसने तो खाली स्टार्ट ही किया था। उसको नहीं पता था कि वो कितना सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। बस पर वो काम वो करता गया, बिना सोचे कि उसका क्या फ्यूचर है या जो भी। वो करता गया क्योंकि उसको मज़ा आता था वो काम में, उसको पसंद था वो काम। उसमें धीरे-धीरे करके उसने बहुत मतलब टाइम भी डाला, उसने अपने एफर्ट्स भी डाले। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये एक सिंपल एक पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं कोई ऐसे पर आप जो भी सक्सेसफुल लोगों को भी देखोगे, तो कहीं न कहीं उन्होंने बहुत छोटी जगह से उन्होंने स्टार्ट किया होता है। और उन्होंने खाली वो स्टेप्स लिए होते हैं जो हम अभी क्या है, हमारा क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं कभी-कभी हमें अंदर से आता है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए। पर हम कोई वजह से वो स्टेप्स नहीं ले पाते। कुछ ना कुछ हमारा खुद का ही माइंड ब्लॉक होता है अपने खुद के लिए। क्योंकि अपने आप को हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया होता है पूरी लाइफ या जो भी है, आई डोंट नो जो भी होता है। किसी और की क्रिटिसिज्म अपने अपने ऊपर ले लेते हैं, जो भी है डाउट करते रहते हैं हमेशा अपने ऊपर। हमको लगता है हम अपने आप को खुद बहुत कम समझते हैं कि नहीं मैं तो ये सक्सेसफुल लोग तो बस वही टैलेंटेड लोग ही होते हैं, सब ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये भी एक हमारी एक बिलीफ सिस्टम होती है। बचपन से हमें कहीं न कहीं पे लगता है कि नहीं अगर कोई टैलेंटेड है तो ही वो आगे जा सकता है या तो स्पोर्ट्स में या तो कोई भी चीज़ में अगर आप ले लो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर हम हमारे अंदर से कुछ आता है और हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसको कहीं आगे तक लेके जा सकते हैं। दैट इज़ व्हाट दिस सेंटेंस इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि कोई भी आर्ट है, कोई भी डिसिप्लिन है, कभी-कभी आपने देखा होगा कि कोई लोग खाली ये अ, मैंने किसी और का भी एक पढ़ा था एक बार कि वो बस ये झाड़ू निकालते थे वो, यू नो सड़क पे पर वो काम को इतने अच्छे तरीके से करते थे। धीरे-धीरे उन्होंने अपनी खुद की ये ट्रैश लेने की कंपनी खोल दी और कहाँ से कहाँ वो कंपनी को लेके गए। तो काम कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। हम सब अलग-अलग तरीके से बने हुए हैं। सो दैट इज़ व्हाई हम लोग पूरे भी कोई एक काम के लिए नहीं बने हैं। हम सब अलग-अलग काम के लिए बने, जैसे ही हमारी फिंगरप्रिंट्स अलग है, वैसे ही खुदा ने हमें किसी न किसी काम के लिए बनाया है। बस हमें वो काम खोजना है या तो जो काम हम अभी कर रहे हैं, उसमें एटलीस्ट प्यार डाल देना है। तो यहाँ पे ये वही बोल रहे हैं कि पुश करते हो जब आप उसको कहाँ तक ले जा सकते हो, जैसे-जैसे आप पुश करते हो कोई भी काम को, तो वो मैजिक ऑफ रैम ऑफ मैजिक में चला जाता है।
कहीं पे आपने ये फ्लो पढ़ा होगा, मैंने एक बार पढ़ा था कि फ्लो होता है जहाँ पे काम एक मेडिटेशन के जैसा होता है कि आप वो काम करते हो, आपको इतना मजा आता है, आप अंदर पूरा उतर चुके होते हो। उसको फ्लो बोलते हैं कि फ्लो में चले गए। तो वो एक तरह का मेडिटेशन हो जाता है, वो काम एक तरह का वो ऐसा हो जाता है उस टाइम पे कि आपको पता भी नहीं होता है कि कितना टाइम क्या जा रहा है, कुछ नहीं। आप वो करते जा रहे हो क्योंकि आपको बहुत मजा आ रहा है उसमें। ओके, लेट्स रीड फर्दर। How can it be that the person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out the same career and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with the little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. हाँ, तो यहाँ पे भी जो हम ये बात कर रहे थे, तो ये जो लोग भी ये काम करते थे, उन्होंने अपने काम के लिए बहुत ही वो ग्रेटफुल थे कि हाँ, चलो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम डूइंग दिस, यू नो। सो अभी चलो हम मान लेते कि हमें अभी नहीं पता है कि हमें एग्जैक्टली क्या है, क्या करना है। कोई काम अभी ऐसे होंगे जो हमें नहीं भी पसंद है तो भी हमें करने पड़ते हैं। कई लोगों को घर के काम नहीं पसंद है, मुझे भी एक्चुअली नहीं पसंद है, तो भी करने पड़ते हैं। तो क्या है कि उसमें अभी जो भी काम है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप काम को अगर काम की तरह ले रहे हो, उसमें अपना वो फेथ नहीं डाल रहे हो, तो फिर ना तो आपको मजा भी नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं पे ऐसा भी होगा कि आपको कहीं ना कहीं आप इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप बैकवर्ड जाते रहते हो, क्योंकि जो भी आप कम काम कर रहे हो उसमें आपको आप ग्रेटफुल नहीं हो वो काम के लिए। तो अभी हमें क्या करना है इस पॉइंट पे, हम सबको, हम जो भी काम कर रहे हैं, वेदर इट्स अ जॉब, वेदर इट्स अ हाउस चोर्स, जो भी काम करते हैं, हमारा जो भी अभी काम है, उसमें हम पूरी अपनी वो डाल दे, अपना पूरा ग्रेटिट्यूड डाल दे कि हाँ, चलो जो भी मेरे काम है अभी, एटलीस्ट मुझे, मेरे पास ये काम है, ऐसा करके उसमें ब्लेसिंग्स फील करके उसमें पूरा ग्रेटिट्यूड डाल देना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. हाँ, तो यहाँ पे हमें एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि हमारे काम के लिए हम कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे सभी चीजों में हमें पॉजिटिव होने के लिए हमें ढूंढना पड़ता है। अगर रिलेशनशिप में भी था तो हमें ढूंढना पड़ा कि चलो हम 5 क्या अच्छी चीजें वो पर्सन में ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर कोई ब्रिलियंट आइडिया या इंस्पिरेशन आपको तभी आएगा जब आप ग्रेटफुल हो। तो इसीलिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज जो भी रोंडा बर्न बोलेगी आप करते जाइए। जैसे आप करोगे, ये भी रोज की प्रैक्टिस होती है। भले आज आप अपने ये दिन के लिए ही कर लो, पर जैसे आप हैबिट बना लोगे इसको, तो आपको अपने जो काम करते भी हो उसमें एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो मजा आना चालू हो ही जाएगा, जो भी काम है आपका। तो ओके, लेट्स रीड फर्दर परी। However,
However has gratitude for their work, whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she have in an abundance. Does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. When you are these lines are very important. Whoever has gratitude for their work. ये वाली जो लाइन्स है, आप अपने दिमाग में इसको बराबर बिठा दो कि जिसके भी लिए आपके पास ग्रेटिट्यूड है, वो चीज हमेशा आपके पास अबंडेंस में आएगी. बी इट वर्क, बी इट मनी, बी इट गुड रिलेशनशिप, जो भी है. अगर वहां पे आपका ग्रेटिट्यूड कम है तो उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी in order to bring more abundance. तो अभी आपको ये अपने काम के एरिया में आपको झांकना है, आज देखना है कि कहाँ पे मेरा ग्रेटिट्यूड लैकिंग है, और उसी चीज को आपको ज्यादा और ज्यादा ग्रेटिट्यूड के साथ करते जाना है. तो हम पढ़ेंगे कि कैसे करना है. ओके, लेट्स रीड. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे अपनी जॉब में, तो ग्रेटिट्यूड के साथ क्या होगा कि अभी आप अपना खुद का, आप वैसा नहीं सोचोगे कि मुझे तो इतने पैसे मिल रहे तो मैं इतना ही काम करूंगा, क्योंकि बिकॉज यू आर ग्रेटफुल फॉर योर वर्क, सो यू विल गिव मोर एंड मोर टू योर जॉब. उस टाइम पे ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे कि नहीं मैं क्यों काम करूं, मुझे तो बस इतना ही, मेरा तो इतना ही असाइंड काम है, मुझे क्यों काम करना है ज्यादा. ये थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि बिकॉज यू आर ग्रेटफुल फॉर योर जॉब. सो जैसे ही ग्रेटफुल होते हैं अपने जॉब के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली आप ज्यादा देना चालू करते हो. जो भी आपको मिल रहा है सामने कंपेंसेशन, उससे तो ज्यादा ही आप दोगे, बिकॉज यू आर ग्रेटफुल. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जॉब में अभी मैं खुशी खुशी अच्छा काम करती हूँ, मतलब पहले से तो बहुत ज्यादा अच्छा. तो उसी तरह से जो भी है, घर में भी अगर आप चालू करते हो, अगर आप घर में रहते हो, घर का काम करते हो, तो जो भी काम करते हो जिसमें भी आप ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करोगे. सॉरी, आई हैव टू मीट समवन. ओके, सो जैसे ही आप चालू करोगे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, वैसे ही आप ज्यादा देते जाओगे काम में. और जो लोग हैं जो हैप्पी नहीं है इनके वर्क में, या तो वो जॉब छोड़ दो, या तो अगर वो जॉब करनी पड़ रही है तो अच्छे से करो, खुश होके करो जो भी आपका काम है. धीरे धीरे आपके खुद के दरवाजे खुलेंगे कि आपको जो काम पसंद है वो आप करने लगोगे. पर ये प्रोसेस के साथ रहना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि चलो आज करोगे और कल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. ये प्रोसेस के साथ हमें रहना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए. ओके, लेट्स रीड. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. So ये बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप समझो ये वैल्यू को, कि ग्रेटिट्यूड का कितना वैल्यू है. अगर आप अपने कस्टमर्स के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, अगर आप अपने एम्प्लॉइज के लिए ग्रेटफुल नहीं है, बोले जैसे भी वो काम करते हैं, अगर आप कंप्लेन करते रहते हो हमेशा कि ये मेरे एम्प्लॉइज ऐसे है, ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, या हमेशा अपने कस्टमर के लिए भी आप ग्रेटफुल नहीं हो कि चलो मान लो दिन में बहुत सारे कस्टमर नहीं आए, पर एक कस्टमर भी आया, उसके लिए भी अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा बिजनेस में.
धीरे 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 वो ग्रो होने लगेगा। इसीलिए अगर आप मान लो कि कहीं आप एम्प्लॉई हो, आपके अंदर में काम करते हैं लोग, तो उनके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि हाँ चलो, जो मेरी जो भी टीम है, जैसी भी है, अच्छी है। और आप जैसे जैसे उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे, उनमें कमियों की जगह पे वहां पे पॉजिटिविटी ढूंढोगे, तो धीरे 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 करके वो बिजनेस पक्का पक्का बढ़ेगा। आप देखोगे कि जो भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो इसके बारे में नहीं सोचते कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, वो बस करते जाते हैं। और वो जो भी करते हैं बहुत ईमानदारी से, खुश होके, उनके अपने खुद के ऊपर विश्वास रख के, और जो भी उनके एम्प्लॉइज है, जो भी है, इसके ऊपर विश्वास करके, अच्छा पॉजिटिव सोच के वो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बिजनेस ओनर्स के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि अपने एम्प्लॉइज, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने काम के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, सभी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity. And when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. Yes, so everybody understood this point. Like if you are a parent and you're taking care of the children, managing your home, so there also you have to look for the things that you are grateful for at this time in your life. क्योंकि अभी आप जो भी कर रहे हो, मे बी आप फ्यूचर में कोई जॉब करने भी वाले हो, पर अभी तो ये काम आपका है, तो आप उसके लिए जितना हो सके इतना ग्रेटफुल रहो। तो धीरे धीरे जो माइंड ब्लॉक्स होते हैं वो खुलते जाएंगे जैसे जैसे आप ग्रेटफुल होंगे। Or then you will attract more support, more help, or more beautiful moments in your work, as a parent or as a homemaker. Okay, let's read. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that the way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Okay, Today, so yeah, सेम बात बोली इन्होंने कि अगर आपका ड्रीम जॉब नहीं भी है आपके पास तो कोई बात नहीं, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो धीरे धीरे करके आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको पसंद है काम। ओके, लेट्स रीड। Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job, be grateful for. Your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. Mm-hmm. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, more success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. So आज आपको क्या करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि आपके पीछे कोई मैनेजर है जो आपके पीछे पीछे देख रहा है कि आप कौन सी चीजों में ग्रेटफुल हो। तो जैसे मान लो आप ऑफिस गए तो आपने कंप्यूटर यूज किया, तो तुरंत ही बोलो कि आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस कंप्यूटर। सो जस्ट इमेजिन कि जो वो मैनेजर है पीछे, वो आपकी पूरा लिस्ट बना रहा है कि कौन सी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो। तो जैसे जैसे लिस्ट बढ़ेगा, दैट विल ब्रिंग मोर एंड मोर सक्सेस एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, एंजॉयमेंट, फुलफिलमेंट टू योर वर्क। सो ये आपको करना है। अगर आप घर में हो तो घर में जैसे अगर बर्तन धो रहे हो तो पानी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपने सोप के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपना जो काम है उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपने बर्तन है उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, किचन के लिए जो भी, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो किचन में कुकिंग के लिए ग्रेटफुल हो, आपकी यूटेंसिल्स जो आप यूज करते हो कुकिंग के लिए। ऐसी कई सारी चीजें जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे,
और सोचना कि लाइक मैनेजर पीछे ही है, वो पूरा इन्वेंट्री ले रहे हैं कि किस किस के लिए आप ग्रेटफुल हो। और ये इनिशियली मान लो आपको ये एकदम से वो फीलिंग्स नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इन्होंने बोला है आज ये दिन में करने के लिए, तो बस करते जाओ। धीरे 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 फीलिंग्स आपको आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाते हैं। कोई भी हैबिट करने के लिए एटलीस्ट इनिशियली फेक भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आता है फीलिंग्स के अंदर। जब आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हो, जब बहुत पॉजिटिव चीजें ढूंढ ढूंढ के निकालते हो, तो अपने आप फीलिंग्स भी आ ही जाती है एट द एंड। ओके, सो सबको समझ में आया ना कि एग्जैक्टली क्या करना है? Okay. Invisible manager can bring to your money more work success opportunities and enjoy. Okay, I read that. Think That's about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and friendship you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionist, assistant, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. सो इन्होंने बोला है, इन्होंने एक ब्लूप्रिंट जैसा दिया है कि आप कौन सी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। कितने सारे लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो आप जो जॉब कर रहे हो उसके लिए वो सोचते हैं कि हाँ काश इनके पास ये जॉब होती। तो अब जब ये सोचते हो तब आप ब्लेसिंग्स फील कर सकते हो। यू कैन फील दैट ब्लेसिंग that at least you are employed, at least you have a job, at least you are getting your paycheck, you know, every month or every 15 days, whatever it is. At least you have some equipments in your job, at your work, that you can use, and you can, you know, make your work easier and easier. Because of this internet, computers, all the phones and everything, without them we could not do any of the work. So if you have all those things, be grateful, feel gratitude about those things. जैसे अगर कोई काम कर रहे, जो पीपल आपके साथ काम करते हैं, उनके लिए भी ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। जैसे रिसेप्शनिस्ट है, असिस्टेंट्स है, जो भी डिलीवरी के लिए कोई आज आ रहा है। जैसे मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो हमारे जो वेंडर्स होते हैं, जो हमारी मेडिसिन को डिलीवर करते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होना, या जो फ्लूइड्स वगैरह लाते हैं, अलग अलग तरीके से डिलीवरीज आती है हमारे वहाँ पे, तो सभी के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। मैन्युफैक्चरर के लिए, सभी के लिए। जब मैंने किया था तो आई वाज इवन grateful for the manufacturers who are you know, making these fluids which are coming to our hospital. So you can be grateful for so many different things in your work. If you are a housewife, at least you can be grateful for whatever you are doing in your house, whatever, and feel that the reward is like your family is happy, you know, your kids are happy, all that rewards. Always think about them and give them gratitude. Okay, let's see. I am grateful for what? The more deeply your manager can see your No, read from here. No. Have your invisible. Okay, have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I am grateful for what? The more deeply your manager can see your feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you could see circumstances instantly improve. Lucky breaks don't don't happen by incident. They are simply gratitude's magical power at work. Yeah, so lucky breaks don't happen by accident. ये तो आपने भी देखा होगा, पता नहीं मुझे, पर मैंने तो देखा है कि अगर आप एक बहुत हैप्पी हो अपने काम में,
बहुत ही अच्छा फील करते हो, हमेशा काम के लिए रेडी रहते हो, कुछ भी काम करना पड़े, ऐसा नहीं कि आपका असाइन काम है तो इतना ही मुझे करना है, पर अगर आप रेडी हो हमेशा कुछ भी काम करने के लिए, तो आपको कहाँ से लकी ब्रेक्स मिलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए काम के लिए ग्रेटिट्यूड करना बहुत बहुत जरूरी है। और આજે મેં आज आपको क्या આજે करना है कि आपको देखना है कि इनविजिबल मैनेजर इज टेकिंग मेकिंग ईच नोट एवरी टाइम यू ग्रेटफुल फॉर। तो आज इन्होंने नहीं बोला है कि आपको रीजन ढूंढना है, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कंप्यूटर। पर मैं जब कर रही थी प्रैक्टिस तो मैं रीजन भी बोल रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा फीलिंग करना था इसलिए। पर ये आपके ऊपर है, आप उसमें हमेशा ऐड तो कर ही सकते हो। हाँ, जो है वो एग्जैक्टली तो करना ही है, उसमें ऐड करना वो अपनी चॉइस है। ओके, रीजन ऐड અલિફિયા करना। यस અલિફિયા અલિફિયા આજે અમારા સાદા જે વેજીટેબલ લઈને આવે છે ને એના માટે મેં ગ્રેટફુલ લખ્યું ગ્રેટિટ્યુડ કે अरे અમારે वाह, ત્યાં થાય છે એટલે માર્કેટમાં મને જવું નથી પડતું. મારા પેન માટે મેં ગ્રેટિટ્યુડ કર્યું કે મેં પેનથી ઈઝી લખી શકું છું એનું ગ્રેટિટ્યુડમાં પેન ગ્રેટિટ્યુડમાં લખ્યું બરાબર. yes, very nice mom. Yes, you have to write for everything, every little things that you can find. And now as you started writing, so you're finding more and more things to be grateful for. હવે મારો રાઇટિંગમાં એટલું સ્પીડ આવી ગઈ છે ને એટલું ફાઇન લખી શકું છું ને. वाओ, सो मम्मी मम्मी हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है कि वो ये उम्र में कर सकते हैं। हर एज इज 73, तो हम सब तो अभी भी यंग एज में है, बहुत सारे, सो मेनी ऑफ अस, तो हम तो ये कर ही सकते हैं। इन्होंने भी अभी ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि कौन कौन सी नई चीजें हैं जिनके लिए ये ग्रेटफुल है, तो सेम वे में हम भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। It works like a magic. Practice falls on a weekend or when you're not at work. Move to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. या तो ये बोल रहे कि अगर आप काम नहीं कर, मतलब आप कोई जॉब करते हो, जॉब के लिए आपका वीकेंड अभी चल रहा है, तो आप जॉब पे नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं, ये वाला काम तब करना जब आप जॉब पे जा रहे हो। ओके, बस इतना ही है। तो ओके, लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6। Magic practice number 6. Magic works like magic. Repeat step 1 to 3. Magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can be grateful for. Have your manager make a note each time you find something grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so everybody's clear about the today's practice? યસ. We don't have Sorry? to return now. हाँ, I could not hear you. What did you say? Hello, Yeah. Alifia. I am Mhm. saying कि हम लोग को ये रिटर्न में नहीं करना ना, नहीं नहीं, सिर्फ रिटर्न में बोलना नहीं है करना ना. है इसको। आई एम नहीं सो नहीं, ग्रेटफुल फॉर. हाँ, इसको रिटर्न में भी नहीं करना है, और इन्होंने यहाँ पे बोला भी नहीं कि आपको कोई रीजन ढूंढना है। आपको बस खाली ये इन्वेंट्री बनाते जाना है कि किस किस के चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर मान लो आप घर में हो और घर में, जैसे मैंने बोला कि कुकिंग के लिए आपके पास स्पाइसेस है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, यू नो, अगर आप कुकिंग करते हो तो। अगर आप घर के लिए कुछ काम कर रहे हो तो आपके पास झाड़ू पोछा है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, या मतलब जो भी आप जो भी ढूंढ सकते हो,
there are so many things that you can be grateful for in your work. अगर घर में काम है तो, अगर बाहर काम करते हो, ગેસની સગડી છે એના માટે બધા માટે કરી છે, ગેસ हाँ, સિલિન્ડર છે, हाँ, स्टव माटे चूल्हे पे। बद्दी, हाँ, फॉर एवरीथिंग, यस। स्टव के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, या फिर जो भी जो चीजें आप आज यूज करोगे, जितना भी आप काम करोगे आप पूरे दिन में, तो उस टाइम पे मोबाइल के लिए, वाईफाई के लिए, डाटा के लिए भी हो सकते हैं ना। यस यस यस, सभी चीजों के लिए जो भी आप यूज करते हो, काम के लिए आप जो भी यूज करोगे, आप सभी चीजों को ग्रेटफुल बोलना। अगर आपको जैसे मम्मी ने बोला कि उनका वेजिटेबल वेंडर घर पे आता है तो उनको जाना नहीं पड़ता, तो उन्होंने इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड किया, तो आप भी कर सकते हो। जो भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो। और जितना बड़ा लिस्ट, ये भी रिमेम्बर करना कि जितना बड़ा लिस्ट आप बनाओगे इतना ही आपका मैनेजर आपसे बहुत खुश होगा और आपके लिए और अच्छी कुछ ना कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज लाएगा, या जो भी चीजें हैं। तो समझ में आया सबको कि इनविजिबल मैनेजर को इमेजिन करना है। आप जैसे मेरी बहन जब कर रही थी तो उसने बहुत अच्छी ये बात बताई थी मुझे उस टाइम पे, कि उसने इमेजिन किया कि फरिश्ते हैं उसके पीछे, वो इमेजिन कर रही थी कि फरिश्ते हैं जो ये सब नोट कर रहे हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, आप इमेजिन कर सकते हो, आप ये गार्डियंस या कोई एंजल्स है आपके पीछे जो हमेशा ये नोट कर रहे हैं, वो भी आप इमेजिन कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। या तो फिर आप जस्ट इनविजिबल मैनेजर को ही इमेजिन कर सकते हो अगर जॉब में हो, क्योंकि मैनेजर वहां पे आप ज्यादा वो रिलेट कर पाओगे। अल्लाह देख रहे हैं वो भी imagine हाँ, कर अल्लाह, सकते यस यस, कि हैं। हाँ देख रहे हैं। अल्लाह देख रहे हैं और वो सब इन्वेंट्री ले रहे हैं, वो लिख रहे हैं, लिस्ट लिख रहे हैं कि किस किस की चीज के लिए, अपने काम के लिए आप ग्रेटफुल हो। यस, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो सभी चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, बस लिखना कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिस इज इजी। ओके, तो सभी को भी समझ में आ गया ना कि और कोई क्वेश्चंस है? चलो मैं एज्यूम करती हूँ कि सबको समझ में इट्स क्लियर। क्लियर। ओके, परफेक्ट। Okay, Fari, you can start reading this book from here when you are feeling joyful. Okay. The measure of love is love without measure. Saint Bernard of Clairvox. 10901153. Christian monk and mystic. When you are feeling joyful, you are giving joy, and you will receive back joyful experiences, joyful situations, and joyful people wherever you go. From the smallest experiences of your favorite song playing on the radio to bigger experiences of receiving a rise. All of the circumstances you experience are the law of attraction responding to your feeling of joy. When you're feeling irritated, you are giving irritation, and you'll receive back irritating experiences, irritating situations, and irritating people wherever you go. From the small irritation of a mosquito to the bigger irritation of your car breaking down, all of these experiences are the law of attraction responding to your irritation. या तो यहाँ पे क्या है कि जब आप जॉयफुल होते हो तो आप अपने जॉयफुल एक्सपीरियंसेस को वापस अट्रैक्ट करते हो, पर जब आप टीचर कॉल करो तस्नीम, आप जब इरिटेशन फील करते हो कोई भी चीज के लिए, तो ऐसी इरिटेटिंग डिफरेंट सिचुएशन आपको आएगी। मान लो आपने घर में इरिटेशन फील किया और आप बाहर गए, तो आप बाहर भी ऐसी सिचुएशन आप अट्रैक्ट करोगे। ये मैंने बहुत देखा है। मुझे अब थोड़ी सी हंसी आ रही है चीज के ऊपर कि कई लोग होते हैं जिनको मस्कीटो से वो बहुत इरिटेट होते हैं, पता नहीं। आई मीन, आई एम नॉट जजिंग देम और एनीथिंग हियर, बट मैं एक ये रिलेट कर पा रही हूँ ये सिचुएशन को कि जो लोग ज्यादा मस्कीटो से इरिटेट होते हैं उनको ही वो मस्कीटो जाके परेशान करेगा। देखना आप कभी भी, आप वहां पे हो, आप होंगे,
Yeah. I experience this in my house. I never get irritated by mosquitoes or any flies. But like my husband often gets irritated. So I always feel मैं उनको हमेशा बोलती कि आप ही के पास क्यों आ रहे हैं मजाक में उड़ाती हूँ। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन Always वहां पे make काम fun of कर it. रहा है, आप अभी रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब जगह पे काम करता है। जिस चीज से आप इरिटेट होते हो वो आपको वापस आपके सामने वो चीज लाके रखेगा। मैंने भी बहुत देखा है कि मैं बाहर हूँ, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि उनको ये बग्स बहुत सता रहे हैं। अभी समर में हम कभी भी जाते हैं कहीं पे, मान लो पार्क वार्क में चले गए, जहाँ जहाँ पे भी, ओके मुझे इतना परेशान नहीं करते, और कभी कर भी जाते तो मैं इतना उसको भाव नहीं देती उस टाइम पे। तो मान लो अगर मुझे मच्छर ने काट भी दिया तो मैंने उसको ज्यादा पावर नहीं दिया, तो वो मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं आते मेरी लाइफ में। पर मैंने देखा है कि जो लोग ज्यादा इरिटेट होते हैं उनके पास ही वो बग्स आते हैं, पता नहीं क्यों। आई मीन अभी हमें पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, पर उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि क्यों ऐसा होता होगा। तो कई बार लोग बोलते कि नहीं, जिनके पास ये मस्कीटोस जा रहे हैं उनका ब्लड मीठा होता है कि लाइक उनका खून बहुत मीठा है इसलिए उनके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, अभी मुझे समझ में आ रहा है। दिस इज ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग in to bring more and more experiences of irritation. That's it, nothing else. Okay, let's read further. Fari, Every good yes, feeling. Yeah. Hello. yes, you Shall are. I read? Yeah, sure. Every good feeling unites you with the force of love because love is the source of all good feelings. Feelings of enthusiasm, excitement, and passion come from love. And when you feel any of them consistently, they give you life filled with enthusiastic excitement and passionate things. तो ये आप अभी सबको समझ में आ गया है, राइट? आई एज्यूम कि ये समझ में आ गया कि जब भी आप अच्छा फील करते हो, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव दैट यू आर गिविंग। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, जब भी हमें खराब फील होता है, जब भी हम ऐसा फील करते हैं कि कुछ तो भी लाइफ में अच्छा नहीं है, तो तुरंत हम स्टार्ट करते हैं कि नहीं, कैसे हम ये अच्छी वाली फीलिंग में जाएं, फीलिंग जोन में। तो ये एक हमारा एफर्ट रहेगा हमेशा कि हमें लाइन से अबोव वाली फीलिंग्स में जाना है, लाइन से बिलो वाली में नहीं रहना है ज्यादा। अगर हम कभी चले भी गए तो ये हमें एफर्ट्स डालने हैं कि हम कैसे वापस ऊपर आए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हमेशा जॉयफुल रहो, पैशनेट रहो, एक्साइटेड रहो, ग्रेटफुल रहो, कि जो भी आपके पास है, जो भी चीजें हैं, वो ज्यादा ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव दैट यू आर गिविंग। ओके, लेट्स रीड फर्दर। You can harness the power of good feelings to the fullest by turning up its volume. To turn up the volume of feelings, take charge of it and deliberately Take charge of it. intensify it so you feel as good as you can. To amplify enthusiasm, reveal in the feeling of enthusiasm, milk the feeling for all that you can by feeling it intensely. When you feel passion or excitement, reveal in those feelings and intensify them by feeling them as deeply as you can. The more you amplify your good feelings, the greater the love you give, and the results you will receive back in your life will be nothing short of spectacular. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रोंडा वन एक्चुअली, कि मान लो आप आज अच्छा फील कर रहे हो, कोई ना कोई चीज है जो आपको अच्छा फील करवा रही है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ा दो। जो भी फीलिंग है, मान लो कि आपको आज एंथुसियाज्म की फीलिंग है, तो आप एंथुसियाज्म का वॉल्यूम बढ़ा दो, एम्पलीफाई कर दो वो फीलिंग को। वही फीलिंग में रहो, वही फीलिंग को ज्यादा ज्यादा मिल्क करो, जैसे बोलते कि मिल्किंग द फीलिंग वट एवर यू हैव टू अ इंटेंस मोर और मोर इंटेंस लेवल्स। अगर फीलिंग पैशन और एक्साइटमेंट है तो भी आप वापस वो फीलिंग और एक्साइटमेंट को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दो।
तो मैं जब ग्रेटिट्यूड के लिए भी बोलती हूँ कि मान लो आपके लिए किसी ने थोड़ा सा भी काम किया, तो आप वहां पे क्या करते हो कि वो भले थोड़ा सा ही सिंपल सा एक्ट था किसी का, जैसे मम्मी ने बोला कि अभी वेजिटेबल वेंडर आता है, तो उसको एम्पलीफाई कर दो कि वाह वेजिटेबल वेंडर आता है, कितना अच्छा है, ये सब्जी लाता है, ये मुझे जो भी चाहिए वो हमेशा उसके पास होता है। तो एक ये थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आई, उसको आप मैग्नीफाई कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो। और ये आपका एफर्ट रहेगा अभी इनिशियली, क्योंकि अभी हमको आदत नहीं है ना ये सब चीजें करने की, तो ये आपको बढ़ानी होगी इनिशियली, फिर धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगी। कि जैसे अगर आप किसी से, मान लो मैं अभी किसी से बात भी करती हूँ, तो इसमें इतना वो जान डाल देते हैं हम, कि आप अगर बोलते हैं कि हाँ मेरा दिन अच्छा था, उसकी जगह बोलो आप मेरा दिन तो अमेजिंग था, इसी टाइप की उसमें फीलिंग ही आपने डाल दी। ये देखो अभी मैं बोल रही हूँ दो चीजें, आप उसमें नोट करना। मैं बोल रही हूँ कि हाँ मेरा दिन अच्छा था, ओके था, ये बोल रही हूँ। और अभी मैं बोल रही हूँ यार मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा था, बहुत मजा आया। अभी ये दो फीलिंग्स को क्या है, सेम सेम चीज में बता रही हूँ, पर वो सेम में मैंने पावर ज्यादा डाल दिया दूसरे वाले में। तो ये छोटी चीजों में आप भी ये कर सकते हो अपने पूरे दिन में, कि अगर आपको अच्छी फीलिंग्स आई है तो उसको और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो। तो जैसे जैसे आप एम्पलीफाई करोगे अपनी गुड फीलिंग्स को, तुरंत ही आपके रिजल्ट्स भी ऐसे ही आने लगेंगे। The greater love you give, the results you will receive back in your life will be nothing short of spectacular. तो आपके रिजल्ट्स भी स्पेक्टेकुलर हो जाएंगे। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Okay. When you're feeling any good feeling, you can also amplify it by looking for things you love. Before sitting down to write this book, each day I spent several minutes amplifying my good feelings. To amplify my good feelings, I thought about all the things I love. I counted the things I love nonstop, one after the other. My family, friends, home, art in the garden, the weather, colors, situation, events, and things I loved that happened during the week, month, or year. I kept listening everything I love in my mind until I felt amazing. Then I sat down to write. It's easy as that to amplify your good feelings, and you can do it anywhere at any time. तो ये रोंडा बनने में बहुत ही अच्छा सरल उपाय दिया कि हम कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं कोई भी फीलिंग्स को, कैसे करना है। कि जो इन्होंने भी बोला कि वो जब ये बुक राइट कर मतलब व्हेन शी वाज राइटिंग दिस बुक, और बिफोर सिटिंग डाउन वो क्या करती थी, सभी अच्छी चीजों को याद करती थी अपनी लाइफ में जो भी है। जैसे फ्लावर्स को देख के, या फिर गार्डन, उसका जो फ्लावर्स इन द गार्डन है उसको देख के, कोई कलर्स उसको अगर पसंद है, कोई मान लो आपको कोई ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन पसंद है जहाँ पे आप गए थे पास्ट में और आपको बहुत मजा आया था, उस टाइम पे आप वो भी याद करके अपनी गुड फीलिंग्स को बढ़ा सकते हो। उस टाइम पे ये हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं आपके बॉडी में। तो जैसे भी आप कुछ भी आपको आज क्या करना है, आज आपको मैं सबको एक चीज दूंगी काम करने के लिए। आपको लिखना है कि क्या क्या चीजें हैं जिसको आप बहुत प्यार करते हो, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी है। अगर म्यूजिक आपको कोई सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद आता है, उसका भी लिस्ट बना लो। तो ये पूरा एक लिस्ट तैयार कर लो कि जो जो चीजें आपको पसंद है। जैसे यहाँ इन्होंने शी काउंटेड ऑल द थिंग्स दैट शी लव्स नॉन स्टॉप, वन आफ्टर द अदर। तो ये हमें बहुत जरूरी है ये करना, क्योंकि अभी हमको पता ही नहीं है कि ये कैसे करना है, कि हम कैसे अपनी गुड फीलिंग्स को एम्पलीफाई करें। अभी हमने जैसे सीक्रेट बुक तो नहीं पढ़ी, बस सीक्रेट में हमने मूवी देखा था। तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ऐसे काम करता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप अच्छी फीलिंग्स दोगे, जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फीलिंग होगी उतना ही आप अपनी लाइफ में पाओगे। ये भी हमको पता था, पर हमें ये कभी पता ही नहीं था कि हम ये सब करें कैसे। उसका जो डीप डीप मीनिंग है वो ही हमें पता ही नहीं था कि अगर हमें फीलिंग्स लानी है तो कैसे लानी है। तो ये एक छोटी छोटी चीजें आपको रोंडा बन यहाँ पे सिखा रही है कि आप कैसे वो सब चीजें कर सकते हो।
ठीक है, तो सब क्लियर है सबको यहाँ तक कि कैसे आपको एम्पलीफाई करना है अपनी फीलिंग्स को? यस Yes, clear. ओके ओके, सो ये आपको अगर आप लिस्ट बना सकते हो तो दैट इज परफेक्ट। एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या चीजें आपको पसंद है। मैंने भी ये लिस्ट बनाया था, तो कभी कभी तो लिखने से ही आपको याद रह जाएगा कि हाँ ये चीजें हैं जो मुझे पसंद है। अगर मैं अभी कभी भी नेगेटिविटी में चली जाती हूँ या जो भी है, तो ये अपना लिस्ट निकाल के देखो और वो चीजें करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट फील करो कि हाँ, मान लो कि कभी कुछ हुआ आपके साथ अपनी डे टू डे लाइफ में और आप बिलो द लाइन फीलिंग्स में चले गए, उस टाइम पे भी ये लिस्ट निकाल के या तो एटलीस्ट सोच के मन में आप कुछ तरह से भी वो फीलिंग्स को बदल सकते हो, कैसे भी करके। सो योर फीलिंग्स रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर गिविंग. We will read from this tomorrow. Okay, so let's read our heart thought. So today's heart thought is amazing. It is very important क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम ये सब नए सीड्स लगा रहे हैं। पर आप जब भी कोई गार्डन में नए सीड्स लगा रहे हो पर वहां पे ऑलरेडी वीड्स हुए हैं वहां पे, तो आप और जितना भी अच्छे सीड्स डालोगे वो वीड्स उनको आगे आने ही नहीं देंगे, राइट? गार्डन में अगर ज्यादा वीड्स है तो वो वीड्स जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप कुछ और नया उसमें प्लांट नहीं कर सकते हो। उसी तरह से अपनी लाइफ में अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में आप किसी के साथ आपको ग्रज है, किसी के साथ रिसेंटमेंट है, कोई पास्ट हर्ट है उसके उनको लेके, या फिर कुछ भी है, जो भी है, अपने खुद के लेके भी आपको अगर कोई रिसेंटमेंट है कुछ किसी चीज को लेके पास्ट में, आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो वहां पे, तो ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो सब वीड्स है आपके लाइफ में। ये वीड्स जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसीलिए हम बहुत ही अच्छा है कि हम ये ग्रेटिट्यूड चालू किया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें बाहर आ रही है, रिलीज हो रही है। पर अभी आपको क्या करना है, ये फॉरगिवनेस करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक एक लोगों को लेके जिनके साथ आपको कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पे आपने उनको नेगेटिव फीलिंग्स दी थी या आप हर्ट हुए थे उस टाइम पे, आपको जाके एक एक लोगों के लिए आपको फॉरगिवनेस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो वीड्स की तरह काम कर रहे हैं। वीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा अगर किसी को मालूम है तो? नहीं पता। अच्छा, तो अनवांटेड प्लांट्स, बस इतना ही पता है। अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स, राइट राइट। तो ऐसा है कि जो ऐसे ही बढ़ जाते हैं, जिसको जो गार्डन में होते तो उनको देख के भी मजा नहीं आता है। तो जैसे लाइफ में अच्छी चीजें है, खराब चीजें, वैसे ही अच्छे प्लांट्स है, ऐसे भी प्लांट्स है जो ऐसे ही बढ़ते हैं और वो जो हमें अच्छे नहीं लगते, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। वीड्स को निकालना जो हमें सर्व नहीं कर रहा है कुछ भी, अगर हम उसकी जगह पे अच्छे फ्लावर प्लांट्स करेंगे तो हमें भी देख के मजा आएगा कि कितने अच्छे फ्लावर्स है, रोज हम उसको देखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। उसी तरह से अगर आपके गार्डन में बहुत सारे जैसे वीड्स है, आपके थॉट प्रोसेस में बहुत सारे वीड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी रिलेटेड टू सम अदर पीपल इन द पास्ट, तो वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ही मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा। तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। आप अपने मेडिटेशन में ये भी बोल सकते हो कि प्लीज ब्रिंग मी द एक्सपीरियंसेस दैट आई वांट टू रिलीज फ्रॉम माय पास्ट, और प्लीज ब्रिंग मी, प्लीज टेल मी द पीपल दैट आई वांट टू फॉरगिव और आई हैव टू फॉरगिव। सो ये भी कर सकते हो ओपोनोपोनो शावर में। आप अपने बॉडी के लिए जो जो खराब चीजें बोलते हो तो उसको उसकी माफी के लिए आप वो शावर कर सकते हो ओपोनोपोनो शावर। तो उसमें जब आप माफी के 4 ये जो प्रोसेस होती है, दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो ये चीजें हैं। वैसी तरह से ही आप फॉरगिवनेस का मेडिटेशन भी कर सकते हो। मेरे पास ये इंग्लिश वर्जन है जो मैंने कल रात को भी किया था ये मेडिटेशन, तो आई कैन सेंड यू दिस मेडिटेशन,
to do it every day if you can, in whatever time you like. बट जैसे जैसे आप करोगे तो वैसे वैसे रिलीज होता जाएगा सब जो भी अंदर भरा हुआ है. ये मिरर वर्क प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, तो उसके आज के दिन में मेरी यही प्रैक्टिस है कि मुझे जाके मिरर के सामने सब लोगों को माफ करना है, जिसके लिए मैं, जिसकी वजह से मैं हर्ट हुई थी, जो भी मेरा एंगर अगर मेरे अंदर भरा हुआ है, कोई रिसेंटमेंट भरा है, तो मुझे उसको एक्सप्रेस करना है, उसको निकाल देना है पूरा. तो ये फॉरगिवनेस करना बहुत जरूरी है. हम नेक्स्ट टाइम जब मिरर बुक करेंगे, मिरर वर्क विथ लुइस हेज बुक, तो उसमें भी हम ये सब चीजें करेंगे. पर अभी आपको क्या करना है, ये मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो तो स्टार्ट करो. सबको बोलूंगी, हम अभी करेंगे ये मेडिटेशन, जब हम अभी साथ में करेंगे, पर ये आपको करना ही पड़ेगा. Okay, let me read. I have explained too much. Sorry. So we do not have to know how to forgive. All we have to do is be willing to forgive. The universe will take care of the how. तो हमें पता नहीं कि हम कैसे माफ करेंगे, पर हमें बस इतना पता है कि हाँ, हमें माफ करना है, हमें अपने हार्ट को प्योरीफाई करना है. इतना पता है अगर, तो गॉड आपको हेल्प करेंगे. I forgive all past experiences. When the word forgiving is mentioned, who comes to your mind? Who is the person, or what is the experience that you feel you will never forget, never forgive? What is that holds you to the past? When you refuse to forgive, you hold on to the past, and it is impossible for you to be in the present time. It is only when you are in the present that you can create your future. Forgiving is a gift to yourself. तो आप ये किसी और के लिए forgiving नहीं कर रहे हो, आप ये अपने खुद के लिए forgiveness कर रहे हो. ये गिफ्ट आप अपने आप को दोगे, किसी और को नहीं. क्योंकि forgiveness करने के बाद आपको जो फीलिंग्स आती है वो बहुत अमेजिंग होती है, बहुत अमेजिंग. आप बहुत लाइट फील करोगे, आपको लगेगा कि वाह, मैं कितना होल्ड ऑन टू कर रही थी कोई चीज को, और जब वो अभी निकल रही है तो आपको जो अलग डिफरेंट जो ब्लिसफुलनेस की फीलिंग्स अंदर से आती है, वो बिल्कुल अलग ही होती है. मैंने ये किया हुआ है एक्सपीरियंस, तो मैं एक्सपीरियंस से आपको बोल सकती हूँ. Forgiving is a gift to yourself. It frees you from the past and the past experience, past relationships. It allows you to live in the present time. When you forgive yourself and forgive others, you are indeed free. There is a tremendous sense of freedom that comes with forgiveness. आप बिल्कुल फ्री फील करोगे जब आप forgive करते हो. तो ये किसी को माफ करना, ये आपके लिए ही है, आपको खुद के लिए एक तरह की गिफ्ट है जो करना बहुत जरूरी है. जैसे ही अपने आप को माइंड ओपन करोगे और बोलोगे कि हाँ, आई एम रेडी नाउ टू फॉरगिव ऑल दोज हु हैड हर्ट मी इन द पास्ट, तो आपको खुद रास्ते मिलते जाएंगे. और आप जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हो, तब तक आप अपना फ्यूचर नहीं क्रिएट कर सकते. So there is a tremendous sense of freedom that comes with forgiveness. Often you need to forgive yourself for putting up with the painful experiences and not loving yourself enough to move away from those experiences. So love yourself, forgive others, and be in the moment. See the old bitterness and old pain just roll off your shoulders as you let go, and the doors of your heart open wide. So अपने हार्ट को पूरा खोल दो सभी अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए, और उसके लिए आप किसी को भी, जो भी आपके पास्ट में है, जिन्होंने आपको किसी भी तरह का दुख दिया है, दर्द दिया है, जो भी है, उनको सभी को अपने लिए माफ करो. तो उनको भी फ्री कर दो अपने उससे, और आप खुद भी फ्री हो जाओ. When you come from a space of love, you are always safe. Forgive everyone, forgive yourself, forgive all past experiences, and you are free. Okay, किसी को भी कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फॉरगिवनेस, दिस हार्ट थॉट? जो भी आप पूछ सकते हो. आपको खुद को पता नहीं होगा कि कहीं कहीं कैसे किसी तरह के रिसेंटमेंट हमारे अंदर भरे होते हैं. जब हम चालू करते हैं ये प्रोसेस, तो कैसे कैसे करके वो बाहर आएगी, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये तो था, ये तो मेरे अंदर था जो मुझे पता नहीं था.
पर चलो अच्छा है, अभी मुझे पता है, मैं रिलीज कर रही हूँ. ओके, सो everyone please tell me, are you clear about this process and this? Yes, yes, clear. ओके ओके ओके, सो चलो हम एक काम करते हैं, आज हम फॉरगिवनेस वाला मेडिटेशन करते हैं. ओके, एवरीबॉडी इज रेडी? Yes. ओके ઓકે, સો લેટ મી પુટ ઓન સમ નાઇસ હાર્ટ થોટ નું આવ્યું નહીં મારા સ્ક્રીન પર. अच्छा, कहीं नहीं, मैं भेज दूंगी आपको, हार्ट थॉट में अभी भेज दूंगी, सो यू कैन रीड. पर समझ में तो आया ना मम्मी? હા, ओके યસ યસ. ओके ओके परफेक्ट. तो चलो ये करते हैं. एक्चुअली फॉरगिवनेस की पोनो वाला मेडिटेशन भी होता है, पर मैं अभी आपको करवाती हूँ मेडिटेशन. और अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको भेजती हूँ इसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर. अगर हिंदी में मिलता है तो हिंदी में भेजूंगी. अगर मुझे लगता है शायद राजन सर का भी है फॉरगिवनेस का ऑडियो, तो मैं आपको भेजूंगी वो. ठीक है, तो आप अपने आप से भी कर सकते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. Running a small business is incredibly challenging. We definitely keep growing. Did you know that 77% of Can you all hear the music? नो, अभी तो कोई आवाज नहीं आ रही. अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही. चलो. So everyone close your eyes. Your back straight. Your hands facing the heavens above. Placed nicely on your heart in the relaxation mode. So whenever you're doing meditation, relax yourself. Like stiff मत रखो अपने spine को भी. Straight रखना है पर stiff नहीं. तो एकदम से relaxing position में आ जाओ. Now let's start relaxing by breathing also. So let's take a deep inhale. Hold. Release. एक एक डीप ब्रीदिंग के साथ सोचो कि आपके अंदर एक तरह की व्हाइट लाइट जा रही है. The white light is going within, which is cleansing you with every breath. और जब आप एक्सहेल करते हो तो ये व्हाइट लाइट आपके सब जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकाल रही है, क्लेंस कर रही है. Again, release. Now let's imagine that white light is coming over through your crown chakra, above your head. So वहां से ये white light enter हो रही है आपके crown चक्रा से आपके head के अंदर, सिर के अंदर. और वहां से ये पूरा क्लेंस कर रही है जो भी आपकी है पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल रही है. और उसकी वजह से आपको बहुत ही लाइट फील हो रहा है. Now imagine a person who ever hurt you in the past.
bring them in your consciousness currently. वो पर्सन के बारे में सोचे, कोई बात नहीं, इन्होंने जो भी किया आपके साथ, वो पूरे एक्सपीरियंसेस को आज आप माफ करोगे, दिल से उनको माफ करोगे। नाउ मेरे साथ रिपीट कीजिए, जो भी पर्सन है आप जिनको भी अभी सोच रहे हो उनका नाम लेके बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, Please forgive me. थैंक यू, Thank you. एंड आई लव यू। And I love you. Again repeat the same, I'm sorry, I'm sorry. please forgive me, Please forgive me. thank you, Thank you. and I love you. And I love you. Again repeat the same mantra, I'm sorry, I'm sorry. please forgive me, Forgive me. I thank you, I thank you. and I love you. And I love you. जो भी आपने मेरे साथ किया, मैं आपको पूरी तरह से माफ करती हूँ और करता हूँ। Please forgive me. वो जो भी था वो मुझे आगे बढ़ने के लिए जरूरी था। मेरे एक्सपीरियंस में वो चीजें काम की थी, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीजें बिना रीजन के नहीं होती। अगर मुझे वो एक्सपीरियंसेस कुछ ना कुछ हुए हैं तो कहीं ना कहीं पे मेरे ही कर्मों का था, और इसीलिए मैं अभी आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो भी वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था उसको मैं रिलीज करके उसको मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने उस टाइम पे जो भी आपके बारे में सोचा या जो भी गलत था, नहीं था, उसके लिए मुझे प्लीज माफ करो। आई थैंक यू एंड आई लव यू। Now also ask for forgiveness for yourself. कि जो भी आपके पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे, उनको आपने उसको घर करने दिया अपने अंदर, और उसके बेसिस के ऊपर आपने पूरी लाइफ निकाल दी। But now you want to release that hurt. So that is why you want to forgive yourself too. It's okay whatever happened. But now we know that this is the gift for ourselves. The forgiveness is the biggest gift we can give to ourselves. So let's forgive our own selves. Now say to yourself, I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Now bring another person in your consciousness, whoever you want to forgive. उन्होंने जो भी किया वो उनके कर्म है, आपके साथ जो भी हुआ वो आपके कर्म थे। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ आप अभी इस टाइम पे उनको माफ कर रहे हो। कंप्लीटली यू आर फॉरगिविंग दैट पर्सन। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया या उन्होंने आपको जो भी आपके साथ बहुत खराब तरीके से पेश आए, या उन्होंने आपको कंट्रोल किया, जो भी किया आपके एक्सपीरियंस में, जो भी किया, आप उनको आज पूरी तरीके से अपने दिल से आप उनसे माफी मांग रहे हो।
जो भी पर्सन का नाम है उनको लेके बोलो, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्योंकि जो लव है आपके अंदर, जो इतना सारा लव है, जो आपको सुप्रीम पावर से जो लव मिला हुआ है, वो लव बहुत बड़ा है। उसका वो सब एक्सपीरियंसेस के सामने ये प्यार बहुत बड़ा है। अपने दिल को एक्सपांड करो और पूरा जो भी लव है सुप्रीम पावर से उसको इनवाइट करो। क्लेंस करो अपने हार्ट को और जो भी इंसान है उनसे माफी मांगो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। कोई पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी थी जो आप उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी किसी और की वजह से आपने मिस कर दी, उनको अपने कॉन्शियसनेस में लाओ और आज माफ करो। जो भी थी उस टाइम पे, जो भी डेस्टिनी थी, चलो कोई बात नहीं, हो गया। आज आप उनको पूरी तरह पूरे दिल से आप माफ कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर जो प्यार है वो बहुत बड़ा है। आप बहुत बड़े हो, आप बहुत पावरफुल हो। उसके सामने वो छोटी छोटी चीजें कुछ मायने नहीं रखती है। Because now you want to move on in your life. So again, bring that person in your consciousness and ask for forgiveness. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. ये सभी लोगों के साथ जो आपका आत्मीय कोड अटैच हुआ था, वो आप आज तोड़ रहे हो और अपने आप को और उनको फ्री कर रहे हो ये इसमें से। Just imagine the code attached to them with you and just cut the code. Cut the code, let them be free and let yourself be free. Completely and fully free in your life. Now you are fully independent in your own experiences. Now you are taking the full responsibility for yourself. You are not blaming any other people for your life experiences, but you are taking the responsibility on yourself and you are asking forgiveness for everything what has happened in the past. Because now you want to move on. Now you want to fulfill all your dreams. Now you want to seed the plant the seeds of forgiveness. You plant the seeds of good and positive feelings, the joy, the love, the harmony, the peace. In this current moment, you are so peaceful, you are so joyful, you are very harmonious and in synchronicity with the universe. जो भी सुप्रीम पावर है आपके साथ हमेशा है। You are always safe, you are always protected, and so it is, so it is, so it is. Now let's rub our palms together. इतना रब करो कि पूरी जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए और पूरा पॉजिटिविटी से अपना मन भर दो, अपना दिल। Now bless all your
body or organs and parts. अपने बाल, अपना conscious, subconscious mind. Or still imagine the white light is also moving along with your hands and cleansing all the parts in your body, all the experiences, all the negative feelings and negative beliefs. Cleanse कर रही है white light, सब चीजों को निकाल रही है. Now bless your spine, your upper lower back, hips, the foot pipe, the neck area, shoulders and hands area. Now feel the heartbeats in your heart. See how it is beating right now. Now let's move on to our lungs, our chest area, our whole digestive system. The white light is also moving and healing everything, cleansing everything. And now we are taking this white light along with your thighs, knees, because your hands are healing tools. So you're healing everything in your body right now, and also healing all the past memories in your cells. Your feet, sole of the feet, and that white light is now moving from your feet into the ground, into the Mother Earth. And that white light is circulating back again and cleansing everything in you. Now let's take our hands towards our heart. Take them together. Let's thank trillions and trillions of cells in our body, all the organs, the whole system, digestive system, all the organs, lungs, heart, reproductive organs, excretory organs, everything. Let's ask for forgiveness from them if we have complained so much about them. Thank you, thank you, thank you. Okay, so how was the experience? Anybody wants to share? Very blissful. Yes, so forgiveness is very important, and I will share the audio with you all. Feeling relaxed. क्या बोला आपने? I said I'm feeling very relaxed. Yes, yes. रिलैक्स भी फील होगा और फिर लाइट हेडेड फील होगा, जैसे एकदम लाइट हो गया, जैसे कोई चीज निकल गई है बॉडी में से. Right. Yes. Okay, so see you all tomorrow. Thank you so much for joining, everybody, each one of you. I'm really, really thankful from my heart, from the bottom of my heart. Thank you. Thank you. Bye. Bye. See you I all. love you. Love you all. Love, light, and abundance. Bye. Hmm.